Who will tell? First is cost of asset. We discussed it. अभी मैंने बोला cost of asset. How will it affect the depreciation? If the cost is high, high will be the depreciation. If the cost is less, then the depreciation calculated will also come to at a reduced value. And what is the meaning of cost here? Amount spent to buy that particular asset plus, bolo, installation expenses, transit insurance, loading and unloading charges, freight, etc., etc. Okay? So that all expenses will inflate your cost. Then estimated working life. इसको डेप्रिसिएशन के साथ कैसे रिलेट करोगे? एस्टिमेटेड लाइफ, वर्किंग लाइफ ऑफ दिस. जितनी लाइफ ज्यादा होगी उतनी डेप्रिसिएशन कम होगी. बिल्कुल ठीक है. बिकॉज व्हेन वी एनालाइज अ सिस्टमैटिक वे टू चार्ज द डेप्रिसिएशन, वी टुक द न्यूमरेटर as cost minus scrap value and we used to divide it with what? Estimated life. If the depreciation you are calculating and your denominator is high, every year you will be charging a less amount of depreciation. If the estimated life is less, you have to save more every year. ठीक है. 2 साल के बाद ही एसेट आपको रिप्लेस करना है और 10 लाख का एसेट आपने खरीदा, 2 साल के बाद ही रिप्लेस करना है. फर्स्टली तो इट इज नॉट अ रैशनल डिसीजन कि 2 साल के लिए आप 10 लाख खर्च कर रहे हो. ठीक है. हमारा फाइनेंस ये सिखाता है, फाइनेंस मैनेजमेंट आप पढ़ोगे +2 क्लास में, वो ये सिखाता है पहले प्रॉस एंड कॉन्स चेक करो. इतनी ह्यूज अमाउंट यू आर स्पेंडिंग एंड यू आर जस्ट रीपिंग द बेनिफिट फॉर 2 years ओनली. यू हैव टू सर्च दोस एसेट व्हिच आर गोइंग टू गिव यू द बेनिफिट एट लीस्ट 5-6 years. आपका पहले तो बाइंग डिसीजन सही होना चाहिए. So she is right. If the estimated life is more, you will be charging every year less amount of depreciation. If the estimated life is less, then you will be charging high amount of depreciation. Done. Then scrap, residual or salvage value. So this is the amount the asset will fetch after its useful life. We call it salvage, we call it scrap, or we call it residual value. If the residual value is high, listen the question carefully. If the residual value is high, will the depreciation will be low or high? Low. कैसे? 10 लाख का एसेट है, 2 लाख सैल्वेज वैल्यू है, 8 लाख बचा. 8 लाख को मैं 4 साल से अब डिवाइड कर देती हूँ या 10 साल कर लेती हूँ. 8 लाख डिवाइडेड बाय 10 years लाइफ है. हर साल आप 80,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे. मान लो सैल्वेज वैल्यू कितनी है? 1 लाख. 9 lakh divided by 10, you will be charging high depreciation. ठीक है. Because हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? Cost minus scrap divided by life of the asset. If the salvage value is high, you will be charging low depreciation. If the salvage value is low, you will be charging high depreciation. Getting it? चलो जी आगे चलते हैं. Provision for repairs and renewals also discussed in the last period. What is the meaning of provision for repairs and renewals? If you have maintained the provision for repairs and maintenance or service, definitely you are going to spend on its maintenance. Then the depreciation will be low. ठीक है. Because आप उसकी सर्विस रेगुलरली करवा रहे हो, आप उसकी मेंटेनेंस के ऊपर खर्चा कर रहे हो, आप उसकी ऑयलिंग और फिनिशिंग वगैरह हर साल करवाते हो. डेफिनेटली आप उसको अच्छे ढंग से हैंडल कर रहे हो, आप अच्छे ढंग से मेंटेन कर रहे हो. ऐसे हालातों में डेप्रिसिएशन कम चार्ज होता है. Got it? आगे चलते हैं. Yes, this we have to discuss now only. Depreciation in case of obsolescence. What is the meaning of obsolescence? Yesterday we discussed. कैसे खराब होना? Is it working or not? Due to obsolescence, will the asset work? During obsolescence or due to obsolescence, will the asset work? Asset will work. It is just out of technology. It is just out of date. It is just out of fashion. ठीक है. मिस टेक्नोलॉजी नहीं आ गई है, मेरी एसेट वर्क कर रही है, मशीन काम कर रही है, लेकिन उतना अच्छा काम नहीं करती जितना अगर मैं एक नई सोफिस्टिकेटेड मशीन खरीदूं. क्योंकि नई सोफिस्टिकेटेड मशीन में सब कुछ ऑटोमेटिक है, मेरी पुरानी मशीन में सब कुछ मेरे को मैनुअल करना पड़ता है. गेटिंग इट? सो हाउ यू विल बी जजिंग द डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ ऑब्सोलेंस? देखना जरा. If the asset is likely to be of nil value due to some new invention, उसकी वैल्यू 0 हम मान रहे हैं क्योंकि नई इन्वेंशन आ गई है, more amount of depreciation should be provided. अगर उसकी वैल्यू आपने 0 ही मान ली
ठीक, और उसकी जगह कुछ नया इन्वेंट हो गया, मशीन चाहे काम कर ही रही है लेकिन फिर भी आप उस केस में ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। आगे रिलेट करते हैं अगले पॉइंट से। लेसर द पीरियड more will be the amount of depreciation. What is the meaning of lesser the period more will be the depreciation? यही lesser the period मतलब लाइफ, या जितनी जल्दी जल्दी नई इन्वेंशंस आती हैं मींस ड्यूरेशन ऑफ द एसेट इज वेरी लेस ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। बहुत जल्दी जल्दी नई इन्वेंशन आती है, दैट इज द लेसर द पीरियड, यू विल बी चार्जिंग मोर डेप्रिसिएशन, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी आपकी पुरानी खरीदी हुई एसेट आउट ऑफ डेट हो जाती है, आउट ऑफ ट्रेंड हो जाती है, आउट ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाती है, देन यू नीड टू सेव मोर एवरी ईयर ना। 2 साल के बाद ही नई टेक्नोलॉजी आ गई, डेफिनेटली यू हैव टू रिप्लेस योर एसेट सो फ्रीक्वेंटली, सो क्विकली, ऑब्वियस है यू विल बी चार्जिंग हाई डेप्रिसिएशन। तो ठीक है, ऑब्सोलेंस को रिलेट कर लोगे। आगे पढ़ते कुछ एग्जांपल्स नहीं है क्या? हाँ, सपोज ये पढ़ते एग्जांपल। सपोज इफ द एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्सोलीट विद इन 6 years, द फर्म विल हैव टू स्प्लिट द वैल्यू ओवर 6 years। ये 6 years की लाइफ हो जाएगी, आपको कॉस्ट को 6 हिस्सों में बांटना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। If it will obsolete in 5 years, then you will be charging more depreciation in comparison to the life of 6 years. So this point already we know very well. हमें पता है, हमने इसको लाइफ के साथ रिलेट करके देखा हुआ है। अब इसी चीज को उसने ऑब्सोलेंस की डिग्री के साथ रिलेट कर दिया। If your degree of obsolescence is high, मतलब so frequently the new things comes into the market and your old things become so quickly obsolete, then you will be charging high depreciation. Done? आगे चलते हैं। लीगल प्रोविजंस। वैसे मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल दैट हाउ मच डेप्रिसिएशन यू शुड चार्ज, बट फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज इन इंडिया वी हैव अ कंपनीज एक्ट, और इसमें लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हुई हैं 2013 में। उस एक्ट में कुछ एसेट्स के बारे में परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन उसने डिफाइन किया है, बताया है उसने कि कौन सी एसेट्स के ऊपर कितने % मैक्सिमम डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। For that purpose, you will be following the provisions, legal provisions of that company's act. But if you are running your business as a sole proprietorship, then for you there is no provision. But if you are running a public limited company, then you should refer. Your auditor will definitely refer. Your CA will definitely keep a track of that provisions. And by following that provisions, they will be charging the depreciation on different assets, right? So this provision you have to keep in your mind. Additions to asset. What is the meaning of this point? Additions. बिल्कुल ठीक है, एक मशीन आपके पास है, दूसरी भी आपने खरीद ली, ठीक, एडिशंस। ठीक, जब नई चीज खरीदेंगे तो डेफिनेटली नई चीज खरीदेंगे तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, नई के ऊपर भी तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ठीक, देखो इसने क्या लिखा, एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन एक्सटेंशन, लाइक चलो मैं इसको एक्सटेंशन से रिलेट करके बताती हूँ। मशीन का तो हो गया, अलग अलग 2 मशीन के ऊपर आप डेप्रिसिएशन लगेगा, तो डेफिनेटली आप 2 के लिए सेविंग करके रख रहे हो। For example, you were having a building earlier, it was just having a ground floor, आपने उसकी एक्सटेंशन करी, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर भी बना लिया, वैल्यू बढ़ गई ना। आपको पता है ना, अगर ग्राउंड फ्लोर बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड है तो उसकी वैल्यू कम है, जब उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर भी बन गया तो बिल्डिंग गॉट एक्सटेंडेड, तो उस केस में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बढ़ी हुई वैल्यू के ऊपर आप क्या करोगे, ज्यादा डेप्रिसिएशन ही तो चार्ज करोगे। दिस इज व्हाट वी कॉल एक्सटेंशन। गॉट इट? चलिए आगे चलते हैं। अगली सारी चीजें भी हम लोगों ने कुछ ना कुछ हद तक कल की थी when we discussed about the causes of depreciation, but now he is talking about the different terminology or you can say synonym of depreciation. depreciation word ना यूज करके हम उसकी जगह कुछ और वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि exhaustion, जैसे कि depleted, ठीक है, और कौन सा था, any other word we used yesterday in place of depreciation? अमोर्टाइजेशन तो मैंने करवाया नहीं, एग्जॉशन हो गया, डिप्लीटेड हो गया, ऑब्सोलेंस, यस, ठीक है। तो उन्हीं टर्म्स को ही एक बार दोबारा से, he says these words can be used interchangeably, लेकिन when he specifies the categories of the asset, how can I use when my any bird or hen or cock dies, I will not be calling it कि he or she got depreciated, I will always be calling इतने birds exhaust हो गए, they exhausted their life, ठीक है। दो ही सेस की डेप्रिसिएशन की जगह पे ये वर्ड यूज होना है, मैं उसे सिनोनिम कहती हूँ, बट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स वी यूज द डिफरेंट वर्ड्स। डन? डिप्लीशन बोलो किसके लिए, कल डिस्कस किया हुआ है, फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, व्हेन यू एक्सट्रैक्ट द नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम द नेचुरल, लाइक अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट कैन बी कोल, दैट कैन बी योर ऑयल, देन इट गेट्स डिप्लीटेड, इट नेवर बीइंग कॉल्ड डेप्रिशिएटेड। Once you have extracted the whole coal from a particular mine, उसके बाद वो माइन बिल्कुल खाली हो गई है, उसे बोलेंगे that mine got depleted,
ठीक, तो नेचुरल रिसोर्सेज के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। यस, अमोर्टाइजेशन इज अ वर्ड विच वी यूज ऑलवेज फॉर इनटेंजिबल एसेट, जब उनकी लाइफ खत्म हो जाती है। लाइक पेटेंट राइट्स, आपने रजिस्टर्ड करवाए 5 सालों के लिए, जब 5 साल बीते तो 6th ईयर में आपने दोबारा उसे रिन्यू करवाना होता है, तो 5 साल में वो क्या हो गए, अमोर्टाइज्ड हो गए। योर ड्राइविंग लाइसेंस गेट्स अमोर्टाइज्ड बिकॉज लाइसेंस इज ऑल्सो योर इनटेंजिबल एसेट। लाइसेंस सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता, सामान को बनाने की भी लाइसेंस है। कल मैंने एग्जांपल दिया था, अल्कोहलिक प्रोडक्ट बनाने का लाइसेंस लेना पड़ेगा। ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, मींस मेडिसिन बनाने वाली कंपनी को भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है, हाँ, रिन्यू भी करवाना होता है। तो जितनी उसकी लाइफ है, जब वो लाइफ खत्म हो जाती है, जितने सालों के लिए वो इशू हुआ है, तो वी ऑलवेज कॉल अ वर्ड अमोर्टाइजेशन। इनटेंजिबल एसेट्स के लिए आपने डेप्रिसिएशन वर्ड नहीं यूज करना, कौन सा वर्ड यूज करना है, अमोर्टाइजेशन। डन। हाँ, अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। डिलैपिडेशन करने से पहले मैं ऑब्सोलेंस करवा दूं, क्योंकि वो हमें पता है। ऑब्सोलेंस क्या है? When the assets becomes out of fashion, when the new inventions are there, ठीक है, तो आपका पुराना एसेट क्या हो जाता है, आउट ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाता है, आउट ऑफ डेट हो जाता है, तो उसे ऑब्सोलेंस कहते हैं। नाउ आई विल रेफर अ न्यू टर्म हियर, दैट इज dilapidation. Dilapidation. This is a loss of the asset ड्यूरिंग द टेनेंसी, जब आपने अपने किसी एसेट को किसी टेनेंट को दिया किराए पे। फॉर एग्जांपल, आपने अपनी बिल्डिंग किराए पे दी है, तो जब वो किराएदार उस बिल्डिंग को यूज कर रहा था, उस टाइम जो आपकी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा या लॉस हुआ, उसे डिलैपिडेशन कहते हैं। आमतौर पे टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच एक एग्रीमेंट होता है कि अगर मैंने जैसी बिल्डिंग तेरे को हैंडओवर करी है ना, टेनेंसी का पीरियड, जब टेन्योर का टाइम पीरियड ओवर होगा, तो मेरे को उसी कंडीशन में चाहिए। अगर मेरे को कोई भी डैमेज लगा तो मैं तेरे से ज्यादा चार्ज करूंगा। और कई बार क्या होता है, जब ये किराए की एग्रीमेंट लंबे चौड़े पीरियड के लिए होते हैं, तो दे टेक अ सिक्योरिटी कि 20,000 अगर मंथली रेंट है तो 20,000 मैंने सिक्योरिटी भी रखनी है, 1 महीने का रेंट मैंने सिक्योरिटी रखनी। व्हेन यू विल लीव माय लाइक दिस बिल्डिंग और होम और दिस प्लेस, आई विल जस्ट सुपरवाइज इट। अगर उसमें कोई डैमेज हुआ होगा तो मैं सिक्योरिटी में से काटूंगा, ठीक है। सो हु इज गोइंग टू बेयर दैट लॉस? टेनेंट, ठीक है, क्योंकि हमने टेनेंट के साथ पहले से क्या किया हुआ, एग्रीमेंट किया। नाउ वी विल रीड दिस पैराग्राफ वर्ड टू वर्ड। Dilapidation, how this is, who is going to bear it, who is going to recover it from tenant? Owner, है ना, landlord। चलो पढ़ते हैं। The term dilapidation refers to the damage done to the building or other property during tenancy done। tenancy means किराए पे दिया या लिया है। आगे चलते हैं। When a property take on lease, और ये जो you know ये जो मॉल वगैरह है या शोरूम्स है, इनके ओनर ये खुद थोड़ी ना होते हैं जो मॉल को चला रहे हैं। They took it on lease, और लीज आमतौर पे 10-15 सालों की होती है। So whenever they will be vacating it, उसके बाद सारी उसकी क्या होगी, चेकिंग होगी। ओनर आके देखेगा, अपना सुपरवाइजर भेजेगा, आर्किटेक्ट को भेजेगा, दे विल चेक कि कोई नुकसान तो नहीं हुआ। तो लाखों में कंपनसेशन ली जाती है टेनेंट से कि यहाँ से डैमेज हो गया, मैंने बोला था ये वॉल को ऐसे ही रखना, आपने यहाँ पे ये कुछ नेल वगैरह लगा दिया या कुछ आपने फिक्सिंग करी जिसके कारण ये चीज क्या हो गई, डैमेज हो गई। सो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डैमेज, ठीक। सो दिस इज व्हाट व्हेन अ प्रॉपर्टी, लीज का मतलब इज नॉट ओनली रेंट, लीज का मतलब टू बी गिवन ऑन रेंट फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड, एंड दैट लॉन्ग पीरियड इज यूजुअली ऑफ 10 to 15 years। जब आप किसी चीज को 10 या 15 सालों के लिए किराए पे लेते हो, तो यू जस्ट ट्रीट दैट एसेट एज एन ओनर, एम आई राइट? 15 सालों के लिए जब आप किसी चीज को यूज करोगे तो आप एक ओनर की तरह यूज करते हो, और लाखों का एग्रीमेंट हुआ होता है भाई लीज का। लीज आपने आते जाते कहीं पे पढ़ा देखा होगा, दिस प्रॉपर्टी इज अवेलेबल ऑन लीज, दिस प्रॉपर्टी इज अवेलेबल ऑन रेंट। लीज का मतलब फॉर अ वेरी कॉमर्स स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, रेंट एग्रीमेंट इज यूजुअली ऑफ 11 months, बट लीज एग्रीमेंट इज यूजुअली मिनिमम 5 साल और ज्यादा 15-20 साल भी हो सकते हैं, ठीक। अब क्या होता है, when a property taken on lease is returned to the landlord, he may ask the lessee, okay, एक तो लीज एग्रीमेंट है, पहले दो पार्टीज के नाम सुनना। लीज इज एन एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट में सारी टर्म्स और कंडीशंस लिखी हुई हैं। जो लीज पे देता है उसे लैंडलॉर्ड नहीं कहते, इस एग्रीमेंट में लेसर कहते हैं। मींस आम भाषा में जिसे हम लैंडलॉर्ड कहते हैं उसे लीज के एग्रीमेंट में लेसर कहते हैं। आम भाषा में हम जिसे टेनेंट कहते हैं उसे लीज के भाषा में लेसी कहते हैं, ठीक है जी। सो एग्रीमेंट किन दो पार्टीज के बीच में हुआ, लेसर एंड लेसी। हु इज लेसर? ओरिजिनली ही इज लैंडलॉर्ड, हु इज लेसी? ओरिजिनली ही और शी इज अ टेनेंट, ठीक है। देखो क्या लिखा, when a property taken on lease is returned to the landlord,
ही में आस्क द लेसी, किसको बोलेगा वो? लेसी किसको बोलेगा? लैंडलॉर्ड किसको बोलेगा? मतलब लेसर, यहाँ पे लेसर ही वर्ड उसे यूज करना चाहिए था, ठीक है, उसने लैंडलॉर्ड को लैंडलॉर्ड ही कहा और टेनेंट को लेसी बना दिया। दो टर्म्स होती हैं, लैंडलॉर्ड को लेसर कहते हैं इस टर्मिनोलॉजी में और टेनेंट को क्या कहते हैं? लेसी कहते हैं। तो लैंडलॉर्ड ने या लेसर ने लेसी को क्या बोला? टू पुट इट एज गुड इन द कंडीशन एज इट वाज एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। मींस मेरी एसेट को उसी हालत में मेरे को वापस करो जिस हालत में जब मैंने आपको इसे किराए पे दिया। अगर कोई डैमेज है तो हु इज गोइंग टू बेयर? लेसी। मींस हु इज गोइंग टू बेयर? टेनेंट। तो dilapidation is a loss or an expenditure from the viewpoint of lessee. टेनेंट के लिए ये लॉस है, ओनर के लिए तो नहीं, ओनर ने तो रिकवर कर लेना। ठीक, देखो जी, टू पुट इट एज गुड कंडीशन एज इट वाज एट द टाइम ऑफ लीजिंग आउट, जब मैंने आपको इसको लीज पे दिया था, जैसी कंडीशन में मेरा एसेट तब था, मेरे को वैसा ही चाहिए। In order to meet the cost of such dilapidation, a provision may be created by debiting the property account with estimated amount of dilapidation and crediting the provision for dilapidation account. कौन बनाएगा ये provision? कहता जैसे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हर साल, तो ये वाला dilapidation कौन बनाएगा? लैंडलॉर्ड थोड़ा ना बनाएगा, लेसी बनाएगा भाई। वो हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा इसमें क्या करता रहेगा? ट्रांसफर करता रहेगा, क्योंकि उसको पता है जब किसी चीज को यूज करो तो वो नई जैसी थोड़ी ना रहती है। ठीक, तो ही विल बी क्रिएटिंग इट। वो इसके लिए जैसे प्रोविजन फॉर रिपेयर्स बनाते हैं, वो प्रोविजन फॉर डिलापिडेशन बनाएगा। और जैसे उसका टेनेंसी का टाइम पीरियड और लीज का टाइम पीरियड खत्म होगा, उसने थोड़े से पैसे जोड़े होंगे, वो एज अ कंपनसेशन किसको दे देगा? ओनर को दे देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ डिलापिडेशन, हाउ ही एंडेड द पैराग्राफ। Depreciation may then be charged on the total assets, total cost of the assets so arrived at any amount, any payment made later on dilapidation may be debited to provision for dilapidation, the balance if any। last वाली 3 लाइनें छोड़ दो, बस आपको मीनिंग आना चाहिए। That is related to the numerical part that you will not get। ठीक, और न्यूमेरिकल में कहीं पे dilapidation का आना ही नहीं है, सारे न्यूमेरिकल हमारे डेप्रिसिएशन के हैं, टेनेंसी के नहीं है। So last 3 or 4 lines whereby he is talking about debiting and crediting that you can leave. Done? That you will not get. Obsolescence already we have done. Is there any difference between the word fluctuation or depreciation? Yes. Fluctuation means change. That change may be increase or decrease, both. Depreciation always means decrease. Will you agree? Yes. ठीक है। तो फ्लक्चुएशन किन चीजों पे होती है? कभी अपवर्ड कभी डाउनवर्ड। जैसे यस, डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे रियल एस्टेट पहली बार, प्रॉपर्टी की वैल्यू पहली बार डाउन आनी शुरू हुई थी, आमतौर पे बढ़ती है। ठीक है, तो लैंड की वैल्यू में फ्लक्चुएशन होती है, बाकी सारे एसेट्स क्या होते हैं? डेप्रिशिएट होते हैं। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ascertaining the amount of depreciation, अब न्यूमेरिकल पार्ट है। ascertaining the amount of depreciation, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन में ओरिजिनल कॉस्ट होगी, आप उसे लिखेंगे। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू होगी, आप उसे भी लिखेंगे क्वेश्चन में। आपके पास एस्टिमेटेड वैल्यू होगी, आप एक फॉर्मूला लगाएंगे, आपके पास एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगा। दिस इज वेरी सिंपल फॉर्मूला। हाउ टू चार्ज द डेप्रिसिएशन व्हेन लाइफ ऑफ द एसेट इज गिवन, ये पूछेगा वो। जब क्वेश्चन में लाइफ ऑफ एसेट नहीं दे रखी, तब डेप्रिसिएशन का ये फॉर्मूला लग ही नहीं सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर मिसिंग है ना। If in the question estimated life of the asset is being given, you will be applying a simple formula, and the annual depreciation you will be calling in that case, which is equal to, बता चुकी हूँ from the beginning I was talking about this formula, बिल्कुल ठीक, cost minus scrap divided by estimated life, and these all 3 contents he will be giving you in the question. Done? So let's frame the formula. Cost minus scrap divided by estimated life. This will always come in amount, रुपीस में आएगी। ठीक है, हर साल का डेप्रिसिएशन आप इस तरह से, दिस इज माइनस साइन भाई। डन? इन 3 चीजों की हेल्प से आप डेप्रिसिएशन लगा सकते हो। बट question becomes complicated, numerical becomes complicated if in the question he is not talking about estimated life. Then we have 2 formulas. वैसे तो डेप्रिसिएशन के 10 फॉर्मूला हैं, 10 मेथड है, लेकिन हमारे सिलेबस में ओनली फर्स्ट एंड सेकंड है। One is what we call straight line method and another is what we call written down value method. पहले मैं बताऊंगी इसे straight line method क्यों कहते हैं और इसका और नाम क्या है। So let's discuss about numerical part.
मेथड्स ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन, बता। सिंपल रेंट का एग्रीमेंट हो, मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए अगर आप किराए पे दे रहे हो तो दो वर्ड्स एंड टेनेंट। टेनेंट की स्पेलिंग देखो, ठीक लिखे मैंने, डबल एन पढ़ता है, सिंगल एन है, ठीक है। और दूसरा कौन होता है? लैंडलॉर्ड, है ना। सिंपल अगर एग्रीमेंट हो, इन दोनों टर्म्स के बारे में आपको पता। बट इफ यू गिव और टेक द बिल्डिंग ऑन अ लॉन्ग पीरियड बेसिस, देन यू हैव अ लीज एग्रीमेंट। आर्यन, आई एम एक्सप्लेनिंग फॉर यू, उसे लीज एग्रीमेंट कहते हैं। तो लीज एग्रीमेंट में जो टेनेंट है उसे लेसी कहते हैं, और जो लैंडलॉर्ड है उसे लेसर कहते हैं। बस इतना याद रखो। लेसी, लेसी मतलब जिसने किराए पे लिया लंबे समय के लिए, और जिसने किराए पे दिया वो लेसर, ठीक है। चलो जी, डन। आई वाज टॉकिंग अबाउट मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन। पहले मेथड को मैं बहुत बार क्वेश्चन में एसएलएम कहा करूंगी। एसएलएम फुल फॉर्म है स्ट्रेट लाइन मेथड। इस मेथड को समझिए, फिर मैं बताऊंगी लॉजिक, इसको स्ट्रेट लाइन क्यों कहते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड, और इट इज नेम्ड एज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, और इट इज नेम्ड एज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। सभी के लॉजिक डिस्कस करेंगे। इसके तीन अलग अलग नाम क्यों रखे गए? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इन माई ओन एग्जाम्पल, फ्रॉम द डे वन आई एम टॉकिंग अबाउट कि 10 लाख की मैंने एसेट खरीदी। सेम एग्जाम्पल आई विल बी टेकिंग हियर। 10 लाख इज द कॉस्ट, इंस्टॉलेशन वगैरह नहीं है, आई एम टेकिंग इट एज सिंपल। और क्वेश्चन में कहीं पे भी एस्टिमेटेड लाइफ नहीं दे रखी, क्वेश्चन में कहीं पे स्क्रैप वैल्यू नहीं दे रखी, क्वेश्चन में लिखा है 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करो बाय स्ट्रेट लाइन मेथड, परसेंटेज वाइज। मींस मैं वो वाला फॉर्मूला तो नहीं लगा सकती बिकॉज आई एम मिसिंग विद स्क्रैप वैल्यू, आई एम मिसिंग विद लाइफ, मेरा वो सिंपल वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। जब आपको परसेंटेज दे रखी है और उसने बोला है वॉइस बी हियर, जब उसने परसेंटेज दे रखी है और उसने आपको बोला है स्ट्रेट लाइन मेथड लगाओ, आपने पहले उसकी ओरिजिनल कॉस्ट लेनी है, उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, 1 लाख है। अगले साल के बिगिनिंग में एसेट 9 लाख की रही, कोई डिवाइड नहीं करना, 1 लाख, फिर 1 लाख होगा क्योंकि हर बार इसका नाम, दूसरा नाम है ओरिजिनल कॉस्ट, हर बार डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे लगेगी। मींस एवरी ईयर यू विल बी चार्जिंग 1 लाख। तीसरे साल फिर से 1 लाख, वैल्यू बची 7। अब इस सारे सीन को मैं ग्राफ पे प्लॉट करूंगी। नीचे मैं ईयर्स लूंगी, इधर मैं डेप्रिसिएशन लूंगी। दिस इज माय वाई एक्सिस, दिस इज माय एक्स एक्सिस, डन। दिस इज नंबर 1 फर्स्ट ईयर, दिस इज सेकेंड ईयर, दिस इज थर्ड ईयर। यहाँ पे मैंने 50,000 लिखा डेप्रिसिएशन, यहाँ पे मैंने 1 लाख लिखा। पहले साल भी डेप्रिसिएशन 1 लाख है। इन द फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन इज 1 लाख। Yes, see here, graph देखिए, plotting of graph. In the first year depreciation is, in the second year depreciation is same dot. In the third year depreciation is 1 lakh. तीनों dots को जब मैं match करूंगी, I get a straight line parallel to x-axis. I got a straight line parallel to x-axis. That's why this method is named as straight line method. When you plot the depreciation on the graph, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जब उसे प्लॉट करते हो, आप एक स्ट्रेट लाइन अटेन करते हो विच रन एग्जैक्टली पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दैट्स व्हाई नेम क्या रखा गया। दूसरा लॉजिक, हर बार डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लग रही है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नेम्ड एज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। थर्ड नाम क्यों रखा गया फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, बिकॉज एवरी ईयर यू चार्ज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, फिक्स्ड अमाउंट। अगर पहले साल 1 लाख है तो दूसरे साल भी 1 लाख है, तीसरे साल भी 1 लाख है, टिल द एंड। कितने सालों तक 1-1 लाख रहेगा? 10 सालों तक। फिर तो वैल्यू 0 हो जानी है। यू टेल मी, कितने सालों तक 1-1 लाख डेप्रिसिएशन होगा? 10 सालों के बाद तो लाइफ क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। डन। सो वी विल पिक द एग्जांपल्स रिलेटेड टू दिस स्ट्रेट लाइन मेथड फर्स्ट। चलिए जी, एग्जांपल नंबर 1 पे आइए। ओके, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देखें इसके जरा। न्यूमेरिकल्स करने से पहले कम एट पेज नंबर 12.8। मेथड समझ आ गया? एनी डाउट? वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, राइट? न्यूमेरिकल्स भी इसके आसान ही रहते हैं। पहला
सिंपल एडवांटेज है? इज इट एन एडवांटेज ऑफ सिंपल मेथड? है ना ये सिंपल मेथड? इसको समझना और दूसरे पार्टी को समझाना भी बहुत आसान है. एसेट इज फुली रिटर्न ऑफ. सेकेंड मेरिट, एसेट इज फुली रिटर्न ऑफ. एसेट की वैल्यू अल्टीमेटली 0 आ जाएगी. ठीक है, क्योंकि आप हर साल सेम अमाउंट से डेप्रिसिएशन क्या कर रहे हो? चार्ज कर रहे हो. आगे चलो. नॉलेज ऑफ टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज. ये मेथड आपको बता देगा, एक बार में बता देगा कि टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा. अगर पहले साल 1 लाख है और 10 लाख में से 1 लाख में कितनी बार माइनस कर सकती हूँ? 10 बार भाई. सो यू कैन हैव एन आइडिया कि जितनी कॉस्ट है उतना ही डेप्रिसिएशन होगा. In this method, cost is equal to या depreciation is equal to the total cost that you have to bifurcate कि कितने सालों तक उतना अमाउंट आप लगाओगे. Had it been 5%, अगर depreciation की परसेंटेज यहाँ पे 5% होती तो 20 सालों तक आप 50 हजार लगाते. ठीक है. Had it been 20%, तो हर साल आप कितना 2 लाख, तो 5 सालों में खत्म हो जाता है. So it depends upon the percentage of depreciation given in the question. Done? आगे चलते हैं. Suitable for fixed life asset. हाँ, a depreciation method is always meant for fixed asset भाई. ये उन assets के लिए बढ़िया है जिनकी लाइफ फिक्स होती है. हमें पता है इस मशीन ने 10 सालों तक चलना है. हमें पता है इस मशीन ने 8 या 10 सालों तक चलना है. ये फर्नीचर 4-5 साल तक चलेगा. तो उन एसेट्स के ऊपर हम आमतौर पे स्ट्रेट लाइन मेथड लगाते हैं. डीमेरिट्स. डू यू फाइंड एनी डीमेरिट? स्ट्रेट लाइन मेथड का कोई डीमेरिट लग रहा है आपको? प्रॉफिट नहीं. स्ट्रेट लाइन मेथड में प्रॉफिट कम होता है. दिस मेथड इज ना अनसाइंटिफिक व्हेन आई कॉल इट. सी, जब मैं इसका डीप में एनालिसिस करती हूँ ना, तो ये मेथड मेरे को अनसाइंटिफिक लगता है. कैसे? पहले साल ठीक है 1 लाख डेप्रिसिएशन लगाया, एट द टाइम इट वाज ब्रांड न्यू. अगले साल तो इसकी वैल्यू 9 लाख रह गई, तो क्या उतना ही डेप्रिसिएशन लगाऊं जितना पहले साल लगा था? पहले साल तो उसकी कंडीशन ही बहुत बढ़िया थी भाई. सो एवरी ईयर एज द वैल्यू गेट्स रिड्यूस्ड, मेरे को डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी रिड्यूस करनी चाहिए. बट दिस मेथड इज इग्नोरिंग दिस फैक्ट. व्हेन वी विल बी शिफ्टिंग टू द सेकंड मेथड, देयरबाय इन द सेकंड ईयर ही विल बी चार्जिंग 9 लाख के ऊपर 10% लगाएगा, 90. अगले साल में वो 8 लाख, ये बन जाएगा 810 के ऊपर 10% लगाएगा, तब आपका क्या होगा? 81,000. सो दैट मेथड सीम्स टू बी साइंटिफिक. लेकिन यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है. जितनी अमाउंट की डेप्रिसिएशन आप पहले साल लगाते हो, सेम अमाउंट आप नेक्स्ट ईयर में भी चार्ज करते हो. उस हिसाब से इसका ड्रॉबैक है. बट इवन देन फ्यू ड्रॉबैक्स आर गिवन हियर. पहला देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा पॉइंट बनाया. पहले इसकी 2 लाइनें पढ़ते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन इट. This method does not take into consideration the interest on capital invested in fixed asset, so the asset is undercapitalized and the profits are overstated. क्या सारे एसेट कंपनी खुद स्पॉन्सर करती है खरीदने के लिए? नहीं. आमतौर पे कंपनीज बोरोविंग्स के ऊपर डिपेंड रहती है. Am I right? अब आपने उस एसेट को खरीदने के लिए कितने का लोन लिया? That is much important here. क्योंकि लोन के ऊपर आप जितना इंटरेस्ट पे करोगे, दैट इज व्हाट वी कॉल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड ऑन द फिक्स्ड एसेट. अगर लोन की परसेंटेज ज्यादा है तो आप क्या करोगे? डेप्रिसिएशन भी ज्यादा चार्ज करोगे कि कम? ज्यादा चार्ज करोगे, क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई. ठीक है, तो देखो पॉइंट जस्टिफाई होता है. सो द एसेट इज अंडर. आप पहले कहता इस मेथड में हम ये देखते ही नहीं है, हम सिर्फ ये देखते हैं हमने कितने में खरीदा. हमने 10 लाख में खरीदा, ये 10 लाख हमें कितने पे इंटरेस्ट पे मिला? हर साल मेरे को इस 10 लाख के ऊपर बैंक को इंटरेस्ट भी देना है. तो यू जस्ट टेक इनटू कंसीडरेशन ओरिजिनल कॉस्ट. आप ये नहीं देखते हो इसके ऊपर बोरोविंग हमने करी है और बोरोविंग के ऊपर कितना इंटरेस्ट देना होगा. थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, बट वी हियर ओनली कंसीडर द ओरिजिनल कॉस्ट. सो दैट्स व्हाई आपकी कैपिटल क्या रहती है? अंडर कैपिटलाइज्ड. आप अपना प्रॉफिट बढ़ा के लिखते हो, लेकिन एक्चुअली ये नहीं होता. आपको यहाँ पे इंटरेस्ट भी ऐड करना था. हर साल आपका इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट जा रहा है, दैट विल बी टेलिंग यू द एग्जैक्ट कॉस्ट. ठीक है, 10 लाख का लोन लिया, 5 सालों के बाद उसे वापस करना है और 2 लाख तो इंटरेस्ट ही है. आपको नहीं लगता 12 लाख का एसेट मानना चाहिए?
होता है ना, पहले पता चल जाता है ना। मैंने लोन, अगर पर्सनल लोन लिया और मैंने 5 सालों में उसे वापस करना है, आई जस्ट कंप्यूटेड कि 5 सालों में मेरे को कितना इंटरेस्ट देना होगा, तो मेरे को लगता है 4 लाख के बदले में या 5 लाख के बदले में मेरे को 6 लाख वापस करना पड़ेगा। इट मींस कि वो 6 लाख जो है वो मेरी क्या होनी चाहिए थी, ओरिजिनल कॉस्ट होनी चाहिए थी, बट दैट इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन माय बोरोइंग आई इग्नोर। Under this method, I take into consideration only the original cost of the asset. So that's why it becomes the limitation of it. बाकी कल डिस्कस करेंगे. That is enough for today.